सो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो उम, मेरा टॉपिक है, जो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ द स्पेसिएशन। ओके, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट्स एवोल्यूशन एवोल्यूशन ऑल अबाउट एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स आर evidences, we can say, that makes we people to know that evolution has really take place. And which were the different types of the evidences, like that of the like that of they were the fossils, they were the analogous organs, and they were the homologous organs, जो हमने पिछले जो हमारा टॉपिक था, जो वीडियो अपलोड किया था मैंने, उसमें मैंने वो बता दी। तो आज जो हमारा टॉपिक है, दैट्स अबाउट द अनदर एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट्स कॉल्ड स्पेसिएशन। ओके, सो व्हाट इज स्पेसिएशन? तो स्पेसिएशन होती क्या है? तो उससे पहले मैं बताऊंगा स्पेसिएशन क्या होती है, एंड हाउ द न्यू स्पेशीज इज क्रिएटेड, and what are the factors that could lead the raise or that could lead the formation of the species. पहले हम ये let we understand first what species is. Okay, you know that in this around ourselves, or around or in our vicinity, we just find the variety of living organisms. जब हम बात करते हैं अपने इर्द गिर्द की, अपने सराउंडिंग्स की, तो अपने इर्द गिर्द और सराउंडिंग्स में हम ये देखते हैं कि देयर आर द नंबर और द वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, and these plants are animals, they belong to different species. Okay, like you have the, I will give the examples of the two plants, like the having the common genera, but they do belong to different species. Like there is the Pinus, a common genera. It's having the two species. One is called Pinus. One is to be called as Pinus Valicina, and second one is to be called as Pinus Roxbury. So Pinus Valicina and Pinus Roxbury, they are the two different species having the common genera. Okay, like we have the infinite number of the species of animals around ourselves, and infinite number of species of the plants in our vicinity or around ourselves. So what species all about? Species होती क्या? पहले हम ये understand करेंगे what's the species. देखिए, जब बात करते हैं स्पेशीज की, तो हम बताते हैं स्पेशीज इज अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टेड ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स. ओके, सिमिलर इंडिविजुअल्स में होते हैं विच कैन ब्रीड टुगेदर एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. तो यहाँ तो आप ऐसे डिफाइन करोगे कि एक पॉपुलेशन है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. ओके, यहाँ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर सिमिलर इंडिविजुअल्स दैट आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीड. तो एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि दे आर एबल, और दे हैव द फीचर दैट दे आर एबल टू इंटरब्रीड टुगेदर. They are able to interbreed together, and by interbreeding there is a there occurs the conception, there it is a fertilization, and after the fertilization a fertile offspring is produced. तो जिनके दरमियान, जो ऑफस्प्रिंग्स के दरमियान आप फर्टिलाइजेशन हो सकती है, जिन ऑफस्प्रिंग्स के दरमियान एक मतलब एक प्रॉपर ब्रीडिंग के बाद एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वी कैन से दैट दे बिलोंग टू ए कॉमन स्पेशीज. दे बिलोंग टू ए कॉमन स्पेशीज. सो if we have the definition of the species, no, we can write that species is the population of organisms consisting of similar individuals. So it consists of similar individuals which can breed together and produce a fertile offspring. Okay, which can breed together and produce a fertile offspring. That's to be called as a species. उसे हम species कहते हैं. Common sense या in a common way, या आप एक सिंपल सी डेफिनेशन भी दे सकते हो. That's a group of individuals that are capable of interbreed. Group of individuals that are capable of interbreed to produce the fertile offspring. Obviously, अगर एक Pinus Roxbury and Pinus Valicina, they are the two different species of the common genera, that's a Pinus. अगर इनमें आप if you allow these two plants to fertile with each other, these plants to if you allow the breeding, if you allow to breed
these two plants, it's impossible. You can't breed belong because they belong to two different species. Like even we have a goat or we have a cow, we have a sheep and a cow, we have a sheep and a goat. If we want to breed the male sheep, take the sperms of the male sheep and wants to fertilize it with the female goat, then it's impossible because they too belong to different species. Because it's not possible that by fertilization, by insemination, there is the chances that the fertilization take place and the fertile offspring is will be produced. Its chances are not there. So they too belong to different species. तो ठीक, लेकिन what speciation is then? If the species is the group of individuals, what is species then? तो what speciation then? देखिए, तो मैंने कहा species है, तो what is speciation then? Speciation is the process by which the new species develop from the existing species is known as speciation. Speciation मैंने कहा एक नई स्पेशीज बनती है। ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्पेशीज है किसी जगह पे, सपोज मानो कि किसी जगह पे किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, जैसे हम बात करते हैं एक ज्योग्राफिकल एरिया है, इस ज्योग्राफिकल एरिया में कोई ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्पेशीज है, तो इसी एग्जिस्टिंग स्पेशीज से एक और स्पेशीज बन जाएगी, एक नई स्पेशीज बन जाएगी। तो नई स्पीशीज का मतलब यह है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ ड्यू टू सम environmental changes or due to some geographical event, this existing species breaks down into two groups, and after a time of years together, or after when these two individuals of these two different species meet each other, then they are not able to interbreed with each other. तो मुझे कहने का ये है, स्पेसिएशन एक्चुअली होती है कि जब हम कहते हैं कि एक ऑलरेडी मानो कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पेशीज है, किसी जगह एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो इससे इस ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक नई स्पेशीज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक नया स्पेशीज क्रिएट हो जाएगा, और फिर अगर इस स्पेशीज का इंडिविजुअल इस स्पेशीज के इंडिविजुअल के मतलब व्हेन द स्पेशीज ऑफ व्हेन द इंडिविजुअल फ्रॉम दिस स्पेशीज वांट्स टू इंटरब्रीड विद दिस, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इनमें क्या हुआ है, इनमें एक डेवलपमेंट हो गई, एक जीनोटाइपिक चेंज हुआ, और जीनोटाइपिक चेंज की वजह से ये दो इंडिविजुअल्स ऑफ द टू populations which are located at different geographical area are not able to interbreed with each other. So then we just called it is a speciation, because this is the formation of species, or we just called it's a formation of species from the already existing one. Okay, तो क्या हो जाता है, तो मैंने कहा इन मोस्ट ऑफ द स्पेशीज जो होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेशीज में क्या होता है कि ये स्पेशीज बनती कैसे हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पेशीज जो बनती है, ये बनती है ड्यू टू द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, एक जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाती है, मानो कि कहीं एक पॉपुलेशन, एक ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मीन्स एक बैरियर क्रिएट हो गया। तो ये लीजिए, एक बैरियर क्रिएट हो गया एक पॉपुलेशन में। ये बैरियर है क्या, यहाँ एक माउंटेन रेंज डेवलप हो जाएगा जो इस पॉपुलेशन को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, दो हिस्सों में तकसीम करेगी। ठीक है, यहाँ एक रिवर डेवलप हो जाएगा, तो इस रिवर के डेवलप और रिवर के फॉर्म होने से ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्पेशीज हैं दो ग्रुप्स में क्रिएट की जाएगी, या इस पॉपुलेशन में क्या हो, या इस पॉपुलेशन में ये हो जाएगा कि एक मतलब एक बड़ा एक सी क्रिएट किया जाएगा, तो सी क्रिएट हो जाएगा जिससे एक पॉपुलेशन डिवाइड हो जाएगी दो हिस्सों में, तो इससे आप ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं। सो वी जस्ट कॉल्ड अ स्पेशीज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, सिंपली it is the already existing species, okay, into two it separates or splits the already existing population, okay, into two groups. Then the geographical barriers include, जो मैंने कहा, माउंटेन रेंज की वजह से, रिवर की वजह से, या सी की वजह से ये
जो जोग्राफिकल आइसोलेशन होती है. जोग्राफिकल आइसोलेशन मीन्स दैट व्हेन एनी ऑफ द पॉपुलेशन इज आइसोलेटेड or they are separated or splitted together or divided by a barrier. So a barrier can be a river, it can be a sea, or it can be, that it can be a mountain even. तो इस बैरियर क्रिएट होने से ये जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगी. तो डिवाइड होने के बाद ये अलग अलग इन्वायरमेंट्स में अकॉर्डिंगली डेवलप हो जाएगी. ठीक है. तो लेकिन एक चीज जो होगा कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इट विल लीड टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. तो ऑब्वियसली जब एक ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, मानो ये एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, तो एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा इन दौरान. तो इस बैरियर से इस टाइप के जो यहाँ के साइड के ऑर्गेनिज्म्स हैं वो इस साइड के ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते. तो ठीक है. So this is called a reproductive isolation. So when the two organisms are not able to reproduce with each other, okay, this is to be called as reproduction isolation. So this geographical isolation will lead to the reproductive isolation. तो जब reproductive isolation हो जाएगा तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से क्या हो जाएगा कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से ये ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जीन्स नहीं हो जाएगा. तो वैसली है दिस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विल क्रिएट द टू जीन पूल्स. इट विल क्रिएट द टू जीन पूल्स. यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ डेवलप हो जाएगी, यहाँ की जो पॉपुलेशन वो यहाँ डेवलप हो जाएगी, और यहाँ के पॉपुलेशन से कोई भी इंडिविजुअल यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ it will stop, or we can say that what will happen, it will not allow the exchange of genes. यहाँ पे exchange of genes नहीं हो जाएगा. तो exchange of genes जब नहीं हो जाएगा तो ये हो जाएगा कि accordingly जो different two sides जो population है वो accordingly develop हो जाएगी in their environments में. So they can reproduce within their own populations, they can reproduce within their own members of the population, but does not exchange the genes with the individuals that are living on the another side, that are separated because of this geographical barrier. So what will happen after the 1,000 years? After 1,000 years, these individuals are being say that their isolated groups of population become so different that they will incapable of reproduction with each other. तो जो मैं अभी बता रहा था कि after the thousands of years, तो when the time will come, when a barrier is to be created after the thousands, ये जो यहाँ पे population वो accordingly develop हो जाएगी, वो अपने जो रिप्रोडक्शन है एक्सचेंज ऑफ जीन्स करेंगे, विद इन देयर ओन जीन पूल करेंगे. यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये डेवलप हो जाएगी, अकॉर्डिंगली उनका जेनेटिक मेकअप भी चेंज हो जाएगा. लेकिन जो जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा या इनका जो जीनोटाइपिक मटेरियल होगा वो तो इसके साथ एक्सचेंज नहीं हो सकते, लेकिन दे विल एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल विद इन द मेंबर्स ऑफ द सेम जीन पूल. तो मैंने कहा कि आफ्टर द 1,000 years के बाद अगर चाहे if the member of this population will be allowed to meet, or it will due to some chances, due to some if it will be allowed a member of this this geographical area, if you allow it to breed with this, it will be not possible, because इनमें इतनी डिफरेंस हो गई 1,000 ईयर के बाद, इतनी डिफरेंस हो जाएगी क्योंकि अगर इतनी डिफरेंस हो जाएगी कि दे विल बी इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विद ईच अदर. सो 1,000 ईयर के बाद इतनी इनमें जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा, इवन इनका जीन पूल के अंदर जो जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा कि अगर आप चाहो कि ये रिप्रोडक्शन करें लेकिन नहीं कर सकते. सो अगर ये दो मेंबर्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो हम ये कहेंगे कि दिस is a new species. So हम ये कहेंगे कि this is the barrier, that this barrier has created the two species. जो already existing species थी, this was an already existing species, उस already existing species में barrier create हो गया, और barrier create होने के बाद ये two species बन गई. तो इस side की एक species बन गई और इस side की एक species बन गई. So we can say that
This is because of the geographical isolation. So this is what speciation is. Okay, creation of new species or formation of new species from already existing one. This is what to be called as speciation, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है. अब तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द creation or that will raise the or that could lead to raise the new species. What are the factors? देखिए फैक्टर्स क्या है. पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है that's to be called as important factor for creation or to raise the new species, that is to be called as geographical isolation. As already I told you that geographical isolation is simply the splitting of any existing species or already existing species by creation of or due to the barrier, due to the geographical barrier. और वो barrier है river मैंने अभी कहा, या माउंटेन फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन हो जाएगा जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को दो हिस्सों में तकसीम करेगा, या एक रिवर आ जाएगा वो स्प्लिट करेगा एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पेशीज़ को, या एक सी क्रिएट हो जाएगा उससे एक ऑलरेडी स्पेशीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पेशीज़ है दो हिस्सों में बढ़ जाएगी. तो उससे क्या हो जाएगा कि दो तरह की पॉपुलेशंस को रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. एक साइड की पॉपुलेशन, एक साइड के मेंबर्स दूसरे साइड के पॉपुलेशन के मेंबर्स के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. तो रिप्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन, आइसोलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन जब हो जाएगा तो इनका दो, इसे आप रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं. तो इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से इट्स नॉट पॉसिबल सो दे कैन ट्रांसमिट द जेनेटिक मटेरियल. अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है तो क्या होगा कि ये ऑर्गेनिजम्स अपने जेनेटिक मटेरियल या अपना जीनोटाइप या अपने कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र करेंगे, दे कैन ट्रांसफ़र देयर जेनेटिक कैरेक्टर विद इन देयर ओन जीन पूल्स. तो वन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल है. दूसरा रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट. व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑल अबाउट? नहीं पूछा जाएगा आपसे जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, लेकिन मैं बताऊंगा यहाँ पे व्हाट्स ए जेनेटिक ड्रिफ्ट. देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट हम ये कहेंगे इट इज़ वेरिएशन इन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स. तो मैंने क्या कहा आपसे कि इट इज़ द वेरिएशन इन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स इन स्मॉल पॉपुलेशन. किसी स्मॉल पॉपुलेशन में जब जीनोटाइप्स, या आप ये कहेंगे इन स्मॉल पॉपुलेशन में जब वेरिएशन हो जाएगी जीनोटाइप्स में, ओके, तो इसे आप जेनेटिक ड्रिफ्ट कहोगे. या आप इसे ये भी कह सकते हो कि यू कैन ऑल्सो कॉल दैट इट्स ऑलरेडी वी कैन से दैट इट्स ऑल्सो we can also say that it's a variation in the population, variation in the gene frequency in a population due to the reproductive or due to the random sampling. आप random sampling से भी कह सकते हो. तो इसे genetic ड्रिफ्ट भी कहते हैं कि अगर एक पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएंगे तो जीन फ्रीक्वेंसी से ये दे आर नॉट एबल टू मीट विद ईच अदर. ओके, then there is another factor that is to be called as the natural selection. Variations caused due to the natural selection. तो already natural selection means that natural, जब nature select करेगा, nature कैसे select करेगा? nature करेगा select, इसे कहते हैं there are the different factors like as the environmental factors is there. environmental factor is there. अगर environmental factor से कोई ऑर्गेनिजम्स की तादाद कम हो जाती है, या दूसरा है उससे कहते हैं कि देयर इज़ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के द मोर वी कैन से दैट द मोर organisms having more vigor for reproduction, or they are also having more vigor for reproduction, and also having the capability and having the capability that they can survive in the particular environment. This is also the cause we just called as a natural selection. ये भी natural selection है. जब nature select करेगा, nature environmental create करेगा
किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव के लिए, ठीक है। तो दिस कैन बी आल्सो द फैक्टर दैट कुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज। तो आपको इतना पूछा जाता है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स। सो वन फैक्टर इज द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, second factor is the genetic drift, and third one is that is to be called as a natural selection. So this was the topic which is to be called as the, जिसे हम ये कहते हैं how the what is speciation and how the new species is created from the already existing one. That's what the speciation is all about. Thank you.